So dear students, today we will discuss the topic partial derivative of first orders. Clear? Partial derivatives of first order. इससे पहले हमने सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ा है. यहाँ पे टर्म्स नया यूज हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स. पार्शियल मीन्स हम पार्शियलिटी करेंगे, जैसे हम कॉमन वे में बात करते हैं, अरे हमारे साथ पार्शियलिटी हो गई, ठीक है. तो ऐसे ही समझते हैं. सपोज लेट z इक्वल्स टू z equals to f of x comma y. Let z equals to f of x comma y be a function where x and y is independent variable and z is dependent variable. z का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? x और y पे, और x और y क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है. क्लियर? then if y is kept constant, if y is kept constant, and x is allowed to vary, then z becomes a function of x only. Then z becomes a function of x only. Clear? z equals to f of x y में हमने क्या किया? y को कांस्टेंट ट्रीट किया और x को हमने वेरी करवाया. क्लियर? देन z, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? z becomes a function of x only because y as it is हमारा कांस्टेंट ट्रीट होगा. क्लियर? अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. इफ वी डिफरेंशिएट z with respect to x and keeping or treating y as a constant, then what should be the derivative? Let's see. If we differentiate z with respect to x and treating y as constant, then derivative of z with respect to x denoted as del z by del x or del f by del x or simply fx. ये तीनों इसका नोटेशन है. मीन्स z क्या है? xy का फंक्शन है, और xy में से अगर हम वन टाइम x को डिफरेंशिएट करते, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और y को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. क्लियर? देन इट बिकम्स del z by del x और del f by del x और fx. इट मीन्स क्या? इस सिंबल से ये क्लियर है, ये जो z है वो क्या है? x और y में है, और यहाँ हम पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. क्लियर? एंड del z by del x is equivalent to f of x plus h comma y minus f of x comma y upon h where limit h tends to 0. Clear? This is the value of del z by del x. Similarly next time when we differentiate z with respect to y, and treated x as constant, then it becomes del z by del y or del f by del y or simply f of y. क्लियर? तो ये क्या हुआ? हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए. क्लियर? एंड अगेन इट इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज del z by del y equals to f of x comma
यहाँ पे हमने h इंक्रीमेंट लिया है x में, तो y में हमने k इंक्रीमेंट ले लिया। f ऑफ x कॉमा y प्लस k माइनस f ऑफ x कॉमा y अपॉन k एंड हियर लिमिट k टेंड्स टू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ del z by del y। इस टाइप का आपने प्लस 2 में भी पढ़ा होगा एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल में, जहाँ हम h इंक्रीमेंट y k इंक्रीमेंट यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। और ये क्या फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स हमने सिंगल टाइम इसको डिफरेंशिएट किया है। क्लियर? हमने इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया है, देन इट बिकम्स del z by del x del z by del y। इसलिए हमने लिखा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर सेकेंड ऑर्डर। लेट्स सी पार्शियल डेरिवेटिव फॉर सेकेंड ऑर्डर। partial derivative of second order, so same as it is del z by del x। if we differentiate this with respect to y, यदि हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा। लेट्स सी, this is del y and this is del z by del x, so it becomes del 2z by del y into del x। it can also be written as f of yx। यहाँ पहले y है बाद में x है, सेम एज इट इज हमने लिखा है f of yx। क्लियर? एंड if we differentiate it with respect to x again, then it becomes del 2z by del x square। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, मीन्स इट बिकम्स f of xx। अगेन if we have del z by del y, अगर हमारे पास del z by del y है, now we are differentiating with respect to x। del z by del y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, then it becomes del 2z by del x del y and it is equivalent to f of xy। it is equivalent to f of xy। पहले यहाँ पे x है फिर y। again differentiating with respect to y, then it becomes del upon del y, this is del z by del y, so it is equivalent to del 2z by del y square, which is equivalent to f of y। clear? now अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, दिस इज f of fyx and this is f xy। in general f of xy is equivalent to f of yx, that is del 2z by del x into del y is equivalent to del 2z by del y into del x। ये दोनों सेम मिलेगा। क्लियर? तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी देखा और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी देखा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन u इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहाँ पे हमने जो फॉर्मूला में लिया था z यूज किया था, यहाँ क्वेश्चन में u गिवन है, जैसा भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इट मींस क्या फाइंड आउट करना है? del u by del x एंड del u by del y। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन we have to find del u by del x and del u by del y। del u by del x फाइंड आउट करना है और del u by del y फाइंड आउट करना है। नाउ here u equals to log x square plus y square। ये सब स्टाइल होता है लिखने का, सो दैट कि जब भी आपका एग्जामिनेशन का कॉपी
इवेलुएट हो तो उसे लगे कि हाँ स्टूडेंट्स ने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व किया है। क्लियर? तो इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो एग्जामिनेशन में मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। और कोई ऐसे ही डेल यू बाई डेल एक्स निकाल दिया, डेल यू बाई डेल वाई निकाल दिया और कोई बच्चा अच्छे से किया, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं तो दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस हो जाते हैं, किसी को 4 मार्क्स लगते हैं और किसी को 6 मार्क्स लगते हैं। यही डिफरेंस जो है वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में हाईएस्ट मार्क्स दिलवाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी नाउ डिफरेंशिएट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ differentiating equation 1 with respect to x and treating y as constant and treating y as constant and treating y as constant. So it becomes del u by del x equals to del log x square plus y square, and we have to differentiate with respect to x. Now it becomes log x square plus y square. तो पहले हम x square plus y square के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल्स, एंड here del of x square plus y square with respect to x. क्लियर? चेन रूल से हमने पहले log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो पहले हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. नाउ डेल ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. क्लियर? सो इट बिकम्स log ऑफ दिस वन मीन्स log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x square plus y square, and now we have to differentiate this, that is del x square by del x plus del y square by del x. Simple. So it becomes 1 by x square plus y square. x square का डिफरेंशिएशन 2x और y का डिफरेंशिएशन x में, y को हमने क्या ट्रीट किया है? कांस्टेंट. सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है. सो इट बिकम्स 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. डेल u बाई डेल एक्स क्या मिला हमारा? 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. क्लियर? सेम एज इट इज वी हैव टू फाइंड डेल u बाई डेल y. जस्ट नोट डाउन. सेम वी हैव टू फाइंड डेल u बाई डेल y. अब u को डेल u बाई डेल y फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y एंड ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट. यही करना है. लेट्स प्रोसीड. नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y एंड ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट. So it becomes del u by del y equals to del log x square plus y square del y. We have to differentiate with respect to y. Again apply chain rule. So it becomes log x square plus y square and del x square plus y square into del x square plus y square, and this is del y. मीन्स चेन रूल लगाया. पहले log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. नाउ del x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो इट बिकम्स differentiation of log, that is this one is 1 by x square plus y square, and this is del x square upon del y plus del y square upon del y. क्लियर? x का y के रेस्पेक्ट में 0 बिकॉज यहाँ हमने क्या किया है? x को कांस्टेंट ट्रीट किया है. सो इट बिकम्स 1 by x square plus y square. This is 0 और y square का डिफरेंशिएशन 2y. So it becomes 2y
upon x square plus y. This is your partial derivatives. तो क्या मिला हमें? फाइनली we have del u by del x equals to 2x upon x square plus y square and del u by del y equals to 2y upon x square plus y square. This is your final answer. Clear? Let's see next question. So next question is, if u equals to x square plus y square plus z square, then prove that x ux plus y uy plus z uz equals to 2u. यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल्स है, x y z. तो सेम एज इट इज जैसे हम del z by del x फाइंड आउट करते हैं, सेम एज इट इज फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? नाउ u के फॉर्म में गिवन है, देन इफ यू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, अगर u को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा? ये दिस इज del u by del x and this del u by del x known as ux, same as it is del u by del y known as uy and del u by del z equals to uz. क्लियर? जो जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे दैट इज ux uy uz. लेट्स सी प्रूफ. में प्रूफ करना है. क्लियर? नाउ हियर u equals to x square plus y square plus z square. Clear? Suppose this is your equation number 1. Now differentiating 1 with respect to x. So we have del u by del x equals to 2x. जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z हमारा कांस्टेंट रेट होगा. नाउ differentiating 1 with respect to y, so it becomes del u by del y equals to x square का डिफरेंशिएशन 0, जैसे ये 0 मिलेगा, this is 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और z का 0, which is equivalent to 2y. And same as it is differentiating 1 with respect to z, so we have del u by del z equals to x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का 0 और z स्क्वायर का 2z. क्लियर? Hence we have del u by del x को हम क्या बोलेंगे? ux. So this is ux equals to 2x, uy equals to 2y and uz equals to 2z. Clear? Now just see LHS. LHS में क्या है? x ux plus y uy plus z uz. तो हम LHS लेके चलते हैं. So here LHS equals to x ux plus y uy plus z uz. So it becomes x ux, x and value of ux is 2x. ux का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x plus y into value of uy is 2y. So 2y and value of uz is 2z. So it becomes 2x square plus 2y square plus 2z square. And taking 2 common, so it becomes x square plus y square plus z square. That is 2 into u. और ये x square plus y square plus z square given है u है, so it becomes 2u. और यही हमें प्रूफ करना था इक्वल्स टू RHS. Proved. Very simple.
हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, LHS में पुट कर दिया, राइट साइड मिल गया। वेरी सिंपल है, क्लियर। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ u इक्वल्स टू y by z प्लस z by x प्लस x by y सो दैट x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है, u का वैल्यू गिवन है, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, सेकेंड टाइम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे और थर्ड टाइम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर दो, दैट्स द सॉल्यूशन। लेट्स सी प्रूफ। Here u equals to y by z plus z by x plus x by y। क्लियर। क्या करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, सेकेंड टाइम y के रेस्पेक्ट में, थर्ड टाइम z के रेस्पेक्ट में। तो लिख ले लैंग्वेज में, दिस इज डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट बिकम्स del u by del x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। नाउ तो डिफरेंशिएशन ऑफ y by z 0, डिफरेंशिएशन ऑफ z by x में z कांस्टेंट, क्लियर, z कांस्टेंट, सो 1 by x del x एंड 1 by y कांस्टेंट del x by del x। z 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by y, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ z by x स्क्वायर प्लस 1 by y, दैट इज del u by del x की वैल्यू क्या मिला हमारे पास, del u by del x, del u by del x इक्वल्स टू माइनस z by x square plus 1 by y, del u by del x equals to minus z by x square plus 1 by y, same as it is we will find del u by del y, so differentiating 1 with respect to y, so it becomes del u by del y equals to y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 by z कांस्टेंट del y by del y प्लस z by x का 0, z और x दोनों कांस्टेंट है, प्लस x कांस्टेंट और 1 by y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन इट बिकम्स y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू 1 by y का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by y स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 by z माइनस x by y स्क्वायर। इट मीन्स वैल्यू ऑफ del u by del y इक्वल्स टू 1 by z माइनस x by y स्क्वायर। सिंपल। अगेन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, del u by del z। नाउ differentiating 1 with respect to z, differentiating 1 with respect to z, so we have del u by del z equals to y as it is, differentiation of 1 by z with respect to z plus 1 by x as it is, differentiation of z with respect to z, और x by y कांस्टेंट है तो ये 0, therefore y 1 by z का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by z स्क्वायर, माइनस 1 by z स्क्वायर प्लस 1 by x, del z by del z will be 1, so it becomes minus y by z square plus 1 by x. It means value of del u by del z equals to minus y by z square plus 1 by x. Clear? Now taking LHS, अब LHS में पुट कर दे del u by del x, del u by del y और del u by del z की वैल्यू. ओके, so let's see. LHS equals to x del u by del x plus y
del u by del y plus z del u by del z. So it becomes x del u by del x की वैल्यू है माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई, del u by del y की वैल्यू है 1 बाई जेड माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस del u by del z की वैल्यू है माइनस y बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स. लेट्स मल्टीप्लाई, देन इट बिकम्स एक्स एक्स कैंसिल, क्या मिलेगा माइनस z बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई प्लस y बाई जेड माइनस y बाई कैंसिल, सो x बाई वाई अगेन माइनस z z कैंसिल, सो y बाई जेड प्लस z बाई x, माइनस z बाई x प्लस z बाई x से कैंसिल प्लस x बाई वाई माइनस x बाई वाई से कैंसिल प्लस y बाई जेड माइनस y बाई जेड से कैंसिल, सो ऑल विल बी कैंसिल, दैट इज 0. और यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS. क्लियर, वेरी सिंपल. तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर पे हमने क्वेश्चंस किया है, सेकेंड ऑर्डर पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू.